آج قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب عمر ایوب خان صاحب، جناب اسد قیصر صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد تشریف لائے ہیں، اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں، اور یہ ایک خیر سگالی کا ان کا تشریف لانا تھا۔ ان کا جو سوچ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملکی مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں، اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے، تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے۔ تلخیوں کو دور کرنا، اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے، اور ہم اس جذبے کو خوش آمدید کہیں گے۔ باقی ملک کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن گزشتہ 10-15 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کا۔ اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے، اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کی طرف سے، اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا، اور اعتراف کیا اس کا، غلطی مانی۔ تو اس قسم کی منصوبہ بندی کے بغیر اندھا دھند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے، غیر محفوظ بنا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی صورتحال۔ اس وقت چمن بارڈر کے اوپر 6-7 ماہ سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہے، جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے، کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا، اور بے ہنگم قسم کے شرائط عائد کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا، وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں، وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں، وہ اپنا معاش چاہتے ہیں، اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا۔ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر عارضی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی، تو وہ قبائل کے بیچ میں سے تھی، ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا۔ اب اس قسم کی آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے، ایک دوسرے کے آواز پہچانتے ہیں، گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوششیں کی گئی، لیکن وہ کوششیں نہیں کامیاب ہو رہی۔ غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر اضطراب ہے، جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں، وہاں پر یہی اضطراب ہے کہ
قطغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر، اور ان کو کوئی متبادل روزگار کی طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیے جا رہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری امر ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے، اور ملک کے اندر بھی ایک خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں، رویوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لیے کچھ دوسری ترجیحاتوں کو معطل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ باقی گفتگو آپ ان سے سن لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو جمعیت علماء اسلام فے کے لیڈر بھی ہیں، اور ان کے ساتھی انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوش آمدید کہا۔ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، بڑی مستفید گفت و شنید ہوئی۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ جے یو آئی فے ہو، ہماری جتنی پارٹیاں ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت، کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدوجہد چلتی جائے۔ اور یہی میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے، ہمارے تحریک قائد جناب اچکزئی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، اور ہر ایک محب وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے۔ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی، اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے۔ جے یو آئی فے کا اپنا ایک سلسلہ، ایک جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے، اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ عملی جامہ پہنا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے، جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا۔ کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد اظہر صاحب آئے، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا دھاوا جو سینٹرل آفس میں بولا گیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رؤوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تعاقب کریں، جیو فینسنگ کریں، وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور والے شخص کے پیچھے، بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں، اور جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی، ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں۔ وہ سی این آئی سی میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے، اس کے اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کوئٹہ میں، ان کو نہیں کرنے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا، پریس کلب کو سیل کر دیا۔ کیوں؟ وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے، اور ان اقدامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، جڑیں کمزور ہوتی ہیں، عدم استحکام ہوتا ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی
सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी आएगी जहां पे आपका आइन और कानून की बालादस्ती होगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, नौकरी के मौके होंगे। इस मौजूदा सूरत हाल में न सरमायाकारी हो रही है, क्योंकि दुनिया जो है उनको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदल व इंसाफ की कोई वो चीज किरण नजर नहीं आ रही। ये एक बदतरीन मार्शल लॉ के दौर से भी बदतरीन इस वक्त ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं, और इस चीज की हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। कैसर साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मोहब्बत से, बहुत खुले दिल से उन्होंने हमें वेलकम किया, और हमारे जो इश्यूज हैं, जो हमारे मुश्तरकात हैं, उस पर हमारी डिस्कशन रही। खासकर जो इस वक्त मुल्क में जो है ना आइन मातल है, और इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक की मुल्क बनता जा रहा है, और जो इस वक्त आज़ादी राय पे जो कदरें लग रही है, और जो कानून पास हो रहे हैं, और जो असम्बली में भी सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है, सारा डिस्कशन हमारे हुए हैं। और ख़ासकर जो पंजाब में गंदम क्राइसिस हैं, जो बहुत बड़े हमारे किसान परेशान हैं, और पाटा और फाटा में जो नई टैक्स के निपास की बात हो रही है, और वैसे भी वहाँ वार जोन है, वहाँ कोई मतलब मुमकिन नहीं है कि इकॉनमी वैसे भी वहाँ बैठ गई है। तो ये सारे डिस्कशन पे हमारे मुश्तरकात हैं, और इंशाल्लाह इस पे हम मुश्तरक जद्दोजहद करेंगे। बाकी जो है ना अपनी पार्टियों को मज़ीद भी जो है ना ऑन बोर्ड दिया जाएगा। कल खान साहब से भी इंशाल्लाह ताला उमर साहब जाएंगे, मीटिंग करेंगे, मौलाना साहब भी अपने शूरा में जो है ना चीज़ों को। लेकिन एक बात क्लियर है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है। मुल्क इस तरह नहीं चलाए जा सकते जहाँ मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते। यानी जो रोपसन साहब के साथ हुआ है, क्या एक उस मुल्क में हो सकता है जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। तो इसको हम मज़म्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है, और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में हम आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, तब इकॉनमी स्टेबल होगी। जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो कोई तस्वर नहीं कर सकता कि यहाँ इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी। मैं साजिद साहब अगर दो बात कर ले फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से हम असद कैसर साहब की सरबराही में और उमर अयूब साहब की क़यादत में मौलाना साहब के पास आए थे, हाजिर हुए थे। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से, इस अलायंस की तरफ से मौलाना साहब के बहुत मशकूर है कि उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ हमें यहाँ पे वेलकम कहा। उनके पार्टी की दूसरी क़यादत के साथ ही जितनी देर हम बैठे रहे, उमर अयूब साहब ने तफसीलन इस पर बात की, कैसर साहब ने बात की, कोई इस तरह का एक नुक्ता नहीं रहा कि जिस पर हमारे और मौलाना साहब के बीच कोई फ़र्क हो। एक पॉइंट पे तो सबसे ज़्यादा इत्तेफाक था कि मुल्क जो लाकानूनियत की तरफ गई, या आइन जो मातल किया गया, आइन की हुक्मरानी इस मुल्क को एकजा रहने के लिए सबसे ज़रूरी है। बलूचिस्तान के हवाले से बात की, मैं इतना कहूँगा कि चमन पर्लत की बात हुई, बार्डर की बात हुई। ग्वादर पे इस वक्त ग्वादर शेर को सीपे के नाम पे एक दफ़ा पहले 2020 में ये इशू उठा था कि फेंसिंग कर रहे हैं। वहाँ के 1.5 लाख जो एकड़ ज़मीन है ग्वादर शेर के, जो मकामी आबादी है, जो 70-80% लोग जो मचीरे हैं और किसान है,
उन सब को फेंसिंग करके अमन के नाम पे ये खारदार था बाढ़ लगाया जा रहा है। यानी अब अंदाज़ा लगाए कि इस मुल्क की आइन के आर्टिकल 15 में आप किसी के फ्री मूवमेंट को इस तरह पाबंद नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम बैरूनी जो सनतकार है, सरमायाकार है, उसको सीपे के नाम पर बलूचिस्तान लाने के लिए ये लाजमी है अमन कायम करना। हम समझते हैं कि ये बलूचिस्तान के लोग तो एक अरसे से वो आइन के और कानून के नाम से नाबलद हो चुके हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान के साथ 70 सालों में जो कुछ हुआ, लेकिन बलूचिस्तान के सियासी जमातें भी यही तस्वर करती, जिस तरह उमर आयुब साहब ने बात की, मौलाना साहब ने बात की, कि अब भी इस मुल्क को जो नौज़ायदा मुल्क है, ये ईरान की तरह नहीं जो हज़ारों साल तारीख़ रखती है, न चाइना की तरह है। इस नौज़ायदा मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ आइन के तनाजुर में इसको बरकरार रखा जा सकता है, इनके आवाम को, मुख्तलिफ इकाइयों को। तो मैं एक बार फिर जो है मौलाना साहब का बहुत मशकूर हूँ, हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत सा जो शेर हुआ, तो हम समझते हैं कि ये राब्ते आगे भी ये कायम दायम रहेंगे और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए हमारी जदोजहद जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। ये बताएं, एक मिनट जी, दो ज़रूरी बातें मैं करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि पंजाब डेफेमेशन बिल, उसकी हम लोग कौमी असम्बली में और हर जगह पे हमारे जो अराकीन है पंजाब असम्बली में, इसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करेंगे और अदालतों में जाएंगे। और मेरी तरफ से आखिरी बात जो है कि मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये पैगाम दिया था कि सारी दुनिया को ये बता दें कि जितना मर्जी है मुझे ये जेल में रखें, पर मैं अपने मौक़िफ़ पे जो मेरा असूल है आइन और कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में, उससे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या JUI को मुश्तरका जद्दोजहद पर आमादा कर लिया गया है, और क्या अगर अपोजिशन कोई जद्दोजहद सड़कों पर लाती है आप हिस्सा बनेंगे? आपका सवाल खुद बता रहा है कि अभी खैर सगाली का माहौल बनाना है। अगर ये सवाल मैं हाँ में जवाब दूँ फिर तो हमारे सफर का मौजूद होता था। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये आइन और कानून की जो जद्दोजहद है, इसका रास्ता सिर्फ स्ट्रीट की तहरीक और ये जलसे जुलूस कन्वेंशन ही है, या हुकूमत के साथ कोई बातचीत, किसी कुव्वत के साथ कोई बातचीत का रास्ता जो है वो भी इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, मैं अपनी और अपनी जमात की तरफ से बात करना चाहूँगा कि इस वक्त हम किस पे एतमाद करें। बातचीत तो होती है तब जब आप इस पे एतमाद कर सकें, उनकी कोई एक ज़बान हो, वो कोई बैठकर आपके साथ, और कौन करेगा बातचीत, कौन करेगा? वज़ीर आज़म करेगा, सदर मुमलिकत करेगा, आर्मी चीफ करेगा, अभी तो ये मालूम नहीं कौन बातचीत करेगा, किसके साथ करेगा। तो एतमाद का क्या माहौल मौजूद है या नहीं? तो ये चीज़ें जो हैं हमसे सवाल करने की नहीं है, बल्कि उन लोगों से सवाल करने की है जिसके बारे में आप कहते हैं। मौलाना साहब, माजी में हमने देखा था कि जमहूरियत के बचाव के लिए आप निकल आए थे, जमहूरियत के बचाव के लिए धरने भी दिए गए, PDM भी बन गया, उसके बाद जब हुकूमत आई तो खामोशी इख्तियार कर ली गई। तो क्या इस वक्त भी अगर इस तरह की तहरीक का आगाज़ हो जाता है, सड़कों पर भी निकलते हैं और फिर कहीं न कहीं से आफर आ जाती है, तो इस तहरीक को ख़त्म तो नहीं करेंगे? अगर आपके पास कोई ऐसे ऑफर की खबर है तो मुझे भी बता दीजिए। आपसे ये सवाल है कि आज तहरीक इंसाफ का वक्त यकीनन आपको एहतजाजी तहरीक में शामिल करने के लिए आया है और मुसलसल राब्तों का सिलसिला भी जारी है। क्या आपको आज तहरीक इंसाफ ने मना लिया, यानी अभी मनाने का सिलसिला जारी है, या आपने कोई एश्योरिटी मांगी है? अभी मनाने का सिलसिला जारी है। श्योरिटी मांगी गई है, कोई बातचीत आगे राब्ते बढ़ाने के लिए कोई श्योरिटी मांगी गई है? ज़ाहिर है जी, जब तक आप संजीदा उमूर पर या मुतनाज़ा उमूर पर कोई बात तय करना चाहते हैं तो एक माहौल तो बनाना पड़ता है, तो इसको आप उसी का हिस्सा। एक मिनट मैं एक पॉइंट स्पीकर साहब बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात जी, एक बात करना चाहता हूँ जी। मौलाना साहब भी बैठे हैं और खड़े हैं, तो इससे फ़ायदा दो चीज़ें जो है ना हम यहाँ सपोर्ट करने आए हैं कि जो अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चला है और जिस तरह आज सेनेट में डिस्कशन हुई, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। अदलिया के ऊपर ये हमला है और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको जो है ना
किल करने के लिए, उसको दबाव के सबूताज करने के लिए सब कुछ हो रहा है। हम मजम्मत भी करते हैं और हम सब जो है ना अपने जजेस के साथ है और हमें उम्मीद रखते हैं कि वो मेरिट के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे। और दूसरा अदलिया की जो बात है, अदलिया जी जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या ये तवक्को की जा सकती है कि आप इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे? आपको किसी ने एजेंडा हाथ में दिया हुआ है तो मुझे बता दो यार। ये बताइएगा कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो अपोजिशन की जो जमातें थी वो आपकी छतरी के नीचे थी। आज वो जमातें जो है हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ आपकी छतरी के नीचे आना चाह रही है, तो आप अपोजिशन में आके याद आते हैं इनको? ये सवाल अभी हमारे सामने नहीं है, हमारी पार्टी के सामने उसूल का है। अगर हमें 2018 के इलेक्शन पर एतमाद नहीं था तो हमारा मौक़िफ़ आपने देखा। आज वो हमारे दोस्त जो उस वक्त हमारे साथ तहरीक में थे, अगर उन्होंने इस इंतखाब के नताइज को तस्लीम किया है तो हम फिर भी अकेले होकर भी कहते हैं कि नहीं, गलत होता है। तो सोचो 2018 में गलत थी, वो आज 2024 में भी गलत है। आपसे सवाल है, ये बताइएगा कि आपने खान साहब ने साइफर को लहरा के कौम को बताया था कि ये अमेरिका की साजिश है कि मेरी हुकूमत गिराई गई। पिछले दिनों आपके वफद ने अमेरिकी सफीर से आपकी मुलाकात हुई है, वो भी कौम को बता दें किस पैराई में मुलाकात हुई है। दूसरा, बहुत अच्छा ने एक सवाल पूरा उन्होंने असद कैसर साहब ने भी कहा कि अदलिया के जो तनकीद हो रही है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी हुकूमत में होते हैं वो अदलिया के साथ होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं वो। जब आपका दौर हुकूमत था तो आपके दौर हुकूमत में भी ऐसे फैसले आए कि जिन्होंने अपोजिशन ने उस पर तनकीद की और आपने साथ दिया, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे खुशी आपने पूछा। सबसे पहले साइफर के हवाले से, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जस्टिस साहिबान उसको सुन रहे हैं और जो रोज़ाना के मतलब हवाले से वहाँ पे जो रिमार्क्स और चीज़ें आ रही हैं, तो हुकूमत जो है इस वक्त वो ख़ुद अपनी वहाँ पे कब्र खोदने में बड़ी तेज़ लगी हुई है और साइफर का केस जो है वो इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद दफन हो जाएगा। दफन हो चुका है, सिर्फ उसका डिसीजन बाकी है। वहाँ पे उस केस में कुछ है ही नहीं और वो एक बोगस केस है, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाज़े मौक़िफ़ था उस वक्त भी, आज भी हम लोग उसकी तायद करते हैं। नंबर 3, अमेरिकन सफ़ीर जो हमारे पास हमें मिलने के लिए आया था, वो वज़ीर आज़म से भी मिला था। उसी ख़त के अंदर 3 अशख़ास का उसने लिखा था, फ़ॉरेन ऑफिस को, वज़ीर आज़म को, स्पीकर कौमी असम्बली को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को। और वो ख़त उसने लिखा था कि ये एक रूटीन की मुलाकात होती है मुख्तलिफ जो आपके रियासत के इदारे होते हैं उनके साथ, उनके जो आपके एग्जेक्टिव के होते हैं और या पार्लियामेंट के होते हैं। तीसरा सवाल का जवाब आपका ये है कि उसके साथ जो गुफ्तशनीद हुई इत्तेफाक के साथ, मेरे भाई असद कैसर साहब भी उसमें मौजूद थे। वहाँ पे वाज़े तौर पे हमने अमेरिकन सफ़ीर को एक बात से बावर कराया कि पाकिस्तान एक आज़ादाना, एक खुद मुख्तार मुल्क है। यहाँ पे हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, किसी मुल्क की मुदाखलत यहाँ पे नहीं चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। और ये चीज़ नहीं होगी तो जो मर्जी आप कर लें, यहाँ पे आपकी ना इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी होगी, ना खुशहाली होगी। और इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान की मईशत में जो आपकी अंदरूनी मुल्क के जो सरमायाकारी है वो एक साल में 86% जो है वो सुकड़ चुकी है और अफराद ज़ारा आप देख लें आसमान पे चली गई है और यहाँ पे हुकूमत के हाथ कुछ नहीं है इस वक्त। मौलाना साहब, साबका फाटा में सिर्फ 7 टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं, उसके अलावा इस्लामाबाद में भी शीम मेल ने मतलब जिस तरह के पीटीआई के तर्जुमान पर हमला किया है, तो इस तरह की ये जो चीज़ें चल रही है, तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत और बाकी जितने भी सिक्योरिटी के इदारे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, सबसे मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और बिल्कुल हमारा यूसुफ साहब की बात सही है कि बजाय इसके कि उस पर हमला करने वाले मुजरिमों का पीछा किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्होंने वहाँ पर हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे, तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं और ये जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी पर एक सवालिया निशान बन जाता है। अब आप दोनों जो जमातें हैं इनके दरमियान हल तलब मामलात क्या हैं? जो आप लोगों का माजी है वो सारी दुनिया जानती है,
تو اب یہ بتائیں کہ کیا کوئی چانس ہے کہ آپ دونوں مل کے کسی جدوجہد کی طرف اکٹھے جائیں؟ وہ میں آپ کو اکیلے میں بتا دوں گا. ایک چیز میں آپ کو آخری میں بتا دیتا ہوں, یہاں پہ ہماری پشتو ایک ہے. اگلی بیٹھک کب ہوگی آپ کی؟ اگلی بیٹھک کب ہوگی؟ پختونوں میں لیے بہت غلط کیا